Hello, good morning student. So today we are going to discuss our next topic from the chapter. Our next topic is importance of a first struggle for freedom and its feature. Okay, so I'm gonna read first of all and then I'm gonna explain you. Though the first struggle for freedom failed, it proved to be a milestone and had far-reaching impact, which became a source of inspiration in the history of freedom struggle for the Indians. This shook the very foundation of a British rule in India. The revolt was eventually crushed by the Governor General Lord Canning, but it dealt a severe blow to them. Consequently, British government had to introduce many administrative changes. These changes brought about many transformation in the Indian economy and governance they were. The declaration was passed in 1858 in the British Parliament, according to which the right to rule was transferred to the British government from the East India Company. After 1858, there was a restructuring of an army since British government had lost faith in the Indian soldiers. All important posts in army were given in the British officers. More number of European soldiers was inducted into in British restructured the Indian army with the policy of divide and rule. There was a change in the policy of a merger of states. Adoption of a successor was recognized. Native rules were assured that no more takeover of the states will take place in henceforth. British government showed a more sympathetic attitude towards the landowners, landlords and the native rulers in order to get their support. अब देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस और फीचर की बात की गई है तो कहीं ना कहीं जो है जिस तरह का स्ट्रगल चल रहा था ये स्ट्रगल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था क्योंकि स्ट्रगल का बहुत अच्छा जो है रिज़ल्ट मिला. हम फेल हुए लेकिन कहीं ना कहीं ये जो फेल था लोगों में ये फीलिंग ज़रूर लेके आया कि उन्हें इस चीज़ से जीतना है. उन्हें लोगों को अपने ऊपर जो है ऑर्डर फॉलो नहीं करवाना है. मतलब बेसिकली उनको जो है वो ब्रिटिशर्स का गुलाम बन के नहीं रहना है. राइट. सो अगेन वी सी द नेक्स्ट पेज. I'm going to read here. The British historians tried to play down the importance of revolt of 1857 by calling in a mutiny of soldiers. The famous revolutionary and the thinker Vinayak Damodar Savarkar called the events of 1857 as the first struggle for freedom and wrote a book with the same title. The first struggle for freedom was started on 10th May 1857 in the Meerut between the soldiers and their officers. But this is the worth a note that the very next day of the soldier marched towards the Delhi and declared the Bahadur Shah Zafar II as the symbolic emperor of India. This way, the struggle of independence, which was not fought between the soldiers and their officers but between the two political powers. अब देखिए जो है बहादुर शाह जफर II को एज अ सिम्बॉलिक एम्परर ऑफ इंडिया बनाया गया. इसके साथ साथ जो है जिस तरह की चीज़ें हो रही थी ये दो पॉलिटिकल पावर्स के बीच हो रही थी. A large number of people participated in the struggle. On one hand, the soldiers were revolting against the British regime, and on the other hand, the common people were protesting against them on the roads with the spears, axes, and sticks in the hand. The fear of the administration and ruler ended from the mind of the people of villages. Wherever the soldiers could not reach, these villages organized themselves and came forward to the protest and revolt. Farmers, artisans, and the landlords whose land were seized came forward openly to express their agitation. Every policy that affected Indian society adversely affected the soldiers as well as therefore the similarity in the interest of the soldiers and the common man was major cause of a unity. This blurred the line of divide between the caste and the religion. Hindus and Muslims came closer than before. This struggle of freedom inspired the coming generation of India for the struggle. The struggle of 1857 implanted the nationalistic feeling. This caused a reinforcement of the cultural unity in the country. The main feature of this struggle was that Indians realized the importance of unity and organization for the achievement of their goals. Therefore, common goal, religious harmony and the feeling of cooperation between people have made the struggle for freedom of 1857 an event of a national importance. अब देखिए यहाँ पे जो बात की गई है वो ये की गई है
कि किस तरह से जो ये स्ट्रगल चल रहा था, जो भी फ्रीडम को लेके ये स्ट्रगल हो रहा था, वो कहीं ना कहीं क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये लोगों में जिस तरह से ब्रिटिशर्स जब शुरू में आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये चीज़ जानी कि हमारे पास जो है काफ़ी सारी डाइवर्सिटीज़ है बहुत इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, कल्चर और सारी चीज़ें। तो इसके बाद क्या हुआ, बेसिकली जो है इन सारी चीज़ों को उन्होंने हथियार बनाया और हम पे फूट डाली और फिर हम पे राज किया। बेसिकली उन्होंने डिवाइड एंड रूल को बहुत अच्छे से फॉलो किया। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये स्ट्रगल बढ़ा, लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि जो वो गोल पाना चाहते हैं उसके लिए यूनिटी और जिस तरह का स्ट्रगल वो कर रहे हैं, जो भी कॉरपोरेशन है और जिस तरह के ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प है, बेसिकली यूनिटी की क्या इंपॉर्टेंस है, उनको वो चीज़ समझ में आई। लोग एक हुए, उनको सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई और उस तरह से जो है बेसिकली क्या हुआ, स्ट्रगल शुरू हुआ, लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया और वो आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रगल था और ये जो रियलाइजेशन था इम्पोर्टेंस का कि क्या है यूनिटी और हमारे लिए कितने हद तक ये मायने रखती है, ये काफ़ी अच्छा था। इस स्ट्रगल से इंडियंस को काफ़ी कुछ सीखने को मिला और इसके बाद जिस भी तरह से कोशिश की गई ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाने की, वो काफ़ी इम्पैक्टफुल थी। Now we see the freedom fighter of 1857. The freedom struggle of 1857 was a widespread event in India. The gallant acts of the fighters soon became famous and well known among the people. These national heroes will always remain a source of the inspiration for the generation to come. It will not be possible to describe about each one of them here. Therefore, only a brief description of the few important soldiers is presented here. अब देखिए यहाँ पे जो बात की गई है वो किन की गई है, फ्रीडम फाइटर्स की, जो कि 1857 में जिन्होंने स्ट्रगल किया था। हालांकि जो स्ट्रगल किया गया था वो काफ़ी सारे लोग थे, काफ़ी सारे जो थे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने मिलके ट्राई किया कि इंडिया को जो है इस प्रॉब्लम से, इंग्लैंड की जो गुलामी है उससे बचाया जा सके। तो इसमें काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व थे, पर ये पॉसिबल नहीं है कि उन सारे लोगों को यहाँ पे बेसिकली उन्हें बताया जाए, मतलब पॉसिबल नहीं है इतने सारे नामों को यहाँ पे एक्सप्लेन करना। तो कुछ जो चुनिंदा लोग थे जिन्होंने अपनी फ़ाइट की, अपनी स्ट्रगल की और जिनकी स्ट्रगल और फाइट इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि उन्होंने काफ़ी ग्लोरियस चीज़ें की, या फिर हम कह सकते हैं लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनी, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो उनमें से जो कुछ फ्यू सोल्जर्स थे सिर्फ उनके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि है फर्स्ट ऑफ थे मंगल पांडे। Mangal Pandey was a soldier who was posted in the Barakpur Chhauni, which is in Bengal, on 29th March 1857. He refused to open the loaded cartridge with the teeth and shot an officer dead in his anger. He was arrested and hanged to death on 8th April 1857. अब देखिए जो मास कार्ट्रिज था, जो मास से बना हुआ कोई एक बम था, जिनको उन्होंने अपने मुंह से खींच के किसी पे फोड़ने से मना कर दिया। बेसिकली उस चीज़ को यूज़ करने से उन्होंने मना किया और इस चीज़ के विरोध में, इस चीज़ के प्रोटेस्ट में उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर्स को जो है वो गोली मार दी। तो जब उन्होंने गोली मारी तो उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं बचने और भागने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन वो ऐसा हो नहीं सका। इन दी एंड क्या हुआ कि उनको अरेस्ट किया गया और उसके बाद उनको फांसी दे दी गई। दैट वाज अ पब्लिक एग्जीक्यूशन, ताकि कोई दूसरा इस तरह का विरोध ना कर सके। तो उन्होंने अपने जानते में, या हम कह सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जितनी हद तक हो सकती थी, कहीं ना कहीं उन्होंने स्ट्रगल की, उस चीज़ का विरोध किया जो चीज़ उन पर इम्पोज की जा रही थी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। So he was the first freedom fighter who actually protest the British regulations. Now we see the next point. Here we have a Bahadur Shah Zafar II. Bahadur Shah Zafar II was the last Mughal emperor. So जो बहादुर शाह जफ़र हैं ये last emperor थे। On the May 10th, 1857, the soldiers of the Meerut cantonment marched to Delhi following a revolt against the British officers. Having conquered Delhi, they were proclaimed Bahadur Shah Zafar II as the Emperor of India. Despite his old age, Bahadur Shah II accepted the leadership of revolt. अब इन्होंने क्या किया, देखिए जो ये बहादुर शाह जफ़र II थे, इनको जब बेसिकली ये जब एम्परर बने तो इनकी एज जो थी वो काफ़ी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने जो रिवोल्ट चल रहा था ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ उसमें पार्टिसिपेट किया, उसको एक्सेप्ट किया और काफ़ी एंथुसियाज़म से उन्होंने एक्सेप्ट किया और अपनी जो सैनिक थे उनको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स दी, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक तरीके से उनको बताया कि उन्हें करना क्या है या चीज़ें जो है वो किस तरह से हमें सॉर्ट आउट करनी है।
To extend the boundaries of revolt, he wrote a personal letter to the ruler of Patiala, Gwalior, Kashmir and Rajput king was requested them to participate in the revolt. और कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया था कि पहले क्या होता था, जब भी किसी पे हमला करना होता तो कई राजा एक दूसरे को लेटर्स लिखते थे एक दूसरे का सपोर्ट मांगने के लिए कि अगर आप हमें सपोर्ट करते तो फिर आगे जो भी चीज़ें हैं वो इस तरह से की जाएंगी। तो उन्होंने भी लेटर लिखा, तो उन्होंने जिन जिन लोगों को लेटर लिखा वो देखिए उनके नाम यहाँ बताए गए हैं, पटियाला, ग्वालियर, कश्मीर एंड द राजपूत किंग्स। तो इन सभी को लेटर्स लिखा गया, लेकिन एज अ कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ, कोई ना जो कहीं ना कहीं कोई पर्सन था जो जिन्होंने डिसीव किया, बेसिकली उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने जो भी इनका प्लान था, जो भी चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं लीक करवाई और इस वजह से जो था वो क्या हुआ, ब्रिटिश आर्मी को कहीं ना कहीं मतलब ये चीज़ें पता चल गई कि किस तरह से चीज़ें होने वाली है, तो उन्होंने अपना काउंटर प्लान पहले ही से रेडी कर लिया और इस वजह से वो वॉर में डिफीट हुए और इसके बाद जो है उनकी मौत हो गई 1862 में। नाउ वी सी द रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप जानते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, वो एक वीरांगना थी। उन्होंने काफ़ी हिम्मत से जो है बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी, उन्होंने बहुत ही हिम्मत से जो है ब्रिटिशर्स का जो है विरोध किया, उनकी सारी चीज़ों का, तो उनके बारे में यहाँ पे बताया गया। बट इन दी एंड जो है कहीं ना कहीं वो उनकी मौत हो गई एंड बट जितनी भी ज़िंदगी उन्होंने जी है, उन्होंने पूरी लाइफ अपनी जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट ही बिताई है। उन्होंने हर तरह से जितनी भी पॉसिबल हो सके कई लड़ाइयाँ लड़ी और कई लोगों को जो है उन्होंने मार गिराया। नाउ वी सी द तात्या टोपे। तात्या टोपे जो थे ये पेशवा फैमिली के थे, ओके, एंड द तात्या टोपे विल बी रिमेंबर एज अ परसिवेंस इन द एब्सेंस ऑफ रिसोर्स, फियरलेसनेस एंड गुरिल्ला warfare tactics. The entire responsibility of Nana Saheb Peshwa military campaign was on the shoulders of तात्या टोपे। तात्या टोपे जो थे वो बहुत ही फियरलेस पर्सन थे, प्लस उसके पास कई ऐसी सारी टैक्टिक्स थी जिनके बेसिस पे वो चीज़ों को जीत सकते थे। अगर मैं इन शॉर्ट आपको कहूँ तो जिस तरह से चाणक्य की नीति आपने पढ़ी है, जो जिस तरह से चाणक्य थे उन्होंने कई ऐसी नीतियाँ बताई, तो उसी तरह से ये एक एडवाइज़र थे और इनका दिमाग जो था ये काफ़ी तेज़ चलता था। जो भी रणनीति होती थी, जो युद्ध की रणनीति होती थी कि किस तरह से अटैक करना है या नहीं करना है, कब हमें पीछे हटना है, कब किस चीज़ का सपोर्ट करना है, तो वो इनमें बहुत अच्छी चीज़ें थी। इन सारी चीज़ों का उन्हें बहुत अच्छे से पता था, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत हेल्प करती थी। और इन्होंने लक्ष्मीबाई की डेथ के बाद भी काफ़ी हद तक, काफ़ी सालों तक, यानी लगभग आई थिंक 1 या 2 सालों तक इन्होंने कोशिश की कि ब्रिटिशर्स का बेसिकली वो करने की, यानी क्या, प्रोटेस्ट करने की। लेकिन इन दी एंड जो है ये अरेस्ट हुए बाय ब्रिटिश और उन्हें काफ़ी बेरहमी से मार दिया गया और इनको जब फांसी दी गई वो शिवपुरी में दी गई ऑन दी डेट ऑफ 18 अप्रैल 1859। अब यहाँ पे नाना साहब के बारे में बताया गया है, तो चलिए मैं रीड करती हूँ इसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, द नाना साहब वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट सोल्जर इन द फ्रीडम स्ट्रगल। ही वॉज अडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव पेशवा टू एंड स्टेड इन बिथुर। अब जो नाना साहब थे वो कौन थे, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोल्जर थे और वो पेशवा बाजीराव टू मतलब जो सन थे, मतलब वो बेटे बाजीराव के थे, पेशवा टू के, और ये बिथुर में रहते थे। आफ्टर द डिमाइज ऑफ बाजीराव पेशवा, ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफ्यूज टू ग्रांट अ टाइटल ऑफ pension to the Nana Sahib. Therefore, the Nana Sahib, along with his loyal soldiers, chased British army off from the Kanpur and declared himself Peshwa. तात्या टोपे एंड द अजमुल्ला वर हिज लॉयल आर्मी चीफ्स। और जो नाना साहब थे उन्होंने क्या किया, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें पेंशन से मना कर दिया जो भी नाना साहब को मिलनी चाहिए थी, तो उसके अगेंस्ट में फिर उन्होंने अपने सोल्जर्स, जो भी उनके लॉयल सोल्जर्स थे, उसके साथ मिल के ब्रिटिश आर्मी को कट ऑफ किया और कानपुर को डिक्लेयर किया कि वो अब पूरी तरह से उनका है, वो और वो वहाँ के पेशवा हैं, जिसमें और इस तरह से जो भी उनकी लॉयल आर्मी फैमिली थी वो भी उनके साथ थी। नाउ वी सी द बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल वॉज द विडो ऑफ नवाब ऑफ अवध। अवध के जो राजा थे उनकी विडोअर थी बेगम हजरत महल। वंस द रिवोल्ट स्टार्टेड, द बेगम एनकरेज्ड एंड मैनेज्ड इट. She declared her a minor son Birjis Qadar as a Nawab of Awadh and ordered her soldier to attack the British residency in the Lucknow. She also led the revolt in the Shahjahanpur. After suffering a defeat, she went to the Nepal. और उन्होंने जो है कहीं ना कहीं
काफ़ी ज़्यादा अपना योगदान दिया है ब्रिटिश के ख़िलाफ़ लड़ने में। उन्होंने अपनी बेटी को जो है एज अ माइनर डिक्लेयर कर दिया था अवध के राजा के तौर पे, और उन्होंने बाकियों को ये जो है ऑर्डर दिया कि वो ब्रिटिश रेसिडेंसी जो कि लखनऊ में थी उस पर अटैक करें। और इस अटैक के बाद उन्होंने शाहजहांपुर का भी जो रिवोल्ट है वो भी उसको हैंडल किया, और इन सारी चीज़ों की सफरिंग के बाद जो वो डिफ़ीट हुई वो नेपाल में चली गई। द अदर पार्टिसिपेंट्स इन द रिवोल्ट ऑफ 1816 वर कुंवर सिंह, देन देयर इज़ अहमदुल्ला, रांगा बाजूजी गुप्ते, सोनाजी पंडित, भीमराव मुंदागरी, नजीफ अदविस एंड देन गुलाम गौस। तो इन सारे नामों को भी यहाँ पे बताया गया है जो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 में जो है उन्होंने हिस्सा लिया था। तो ये सारे जो थे इम्पॉर्टेंट फाइटर्स थे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की है फॉर द पर्पज़ ऑफ फ्रीडम। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो समझ में नहीं आ रही है या कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर द डे, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी सी द नेक्स्ट न्यू चैप्टर।